Hello students, welcome back to a new lecture of 11th Biology Practical number 8, that is study of characteristics, external characteristics of cockroach. So in this practical we will see the external features or morphology of cockroach. Chalo, let's start. So as we know, cockroach is a animal basically belonging to kingdom Animalia. Then the phylum Arthropoda. Now why Arthropoda? Because Animalia, because it shows locomotion. So when we say kingdom, so kingdom is Animalia, obviously because it can locomote, it is heterotrophic mode of nutrition, so Animalia के features हैं. Then is phylum, as the name suggests, arthro means joint, poda means appendages. So you can see the legs, they look like fragmented pieces, so they are like joint appendages. That's why we call them as arthropoda. Plus they have an exoskeleton made up of chitin, जो भी बोलना है तुम्हें. So that's the feature of arthropoda, and obviously it belongs to the class of insecta. ठीक है, जो यहाँ पे हमने निकाला है वो है जीनस पेरिप्लेनेटा एंड स्पीशीज अमेरिकाना. ठीक है, सो these are the features. Now why insecta? Because we know insect have 3 pairs of legs. ठीक है, 3 pairs of legs जिनमें है वो insecta. Then arachnids एक और क्लास है arthropoda में, which have 4 pairs of legs, and crustaceans they have many legs. ठीक है, so basically cockroach belongs to the category of insecta because it has 3 pairs of legs. Then as we all know, the habitat of cockroach is generally damp and moist places. Then we know it is a nocturnal animal. ठीक है, it is nocturnal animal. Then it is omnivorous because it is present everywhere. ठीक है, even you can find cockroaches even in deserts, even in deep forests, even in cold regions, and even in cities. ठीक है, so they are highly acclimatized type of animals because they can stay or they can survive in various adverse climatic conditions. So they are omnivorous. Nocturnals generally means they are, since they are very slow in their movements, so they prefer to come out at night. ठीक है, so they are more active at night. They are not seen more active during the daytime. So that's the meaning of nocturnal. ठीक है, साइज की अगर हम बात करें, so around about 3.34 to 53 millimeters उसकी लेंथ है, 8 to 10 centimeters, 8 to 10 millimeters width मिलेगी तुम्हें. So that's the average shape size of an cockroach. Now if you see cockroach, when we look externally from here, you can see we can divide it into 3 parts. Head, this is the thorax, and this is the abdominal part. ठीक है, so basically cockroach body is divided into 3 parts and we study it in 3 parts, that is the head, thorax and the abdomen. Head, thorax has 3 segments and around about 10 segments you will get it in abdominal region. So वही देखते हैं head. Now obviously अगर हम cockroach origin मतलब side view से cockroach को देखें, the head is somewhat triangular or ovate shape. ठीक है, थोड़ा सा ovalish या triangular shape है, और इसकी neck it is almost at 90 degree. ठीक है, this is the thorax. Suppose ये thorax अगर है, so the neck is joined with the thorax with the help of sclerites. ठीक है, the muscles, neck muscles के जरिए, and this at 90 degree more or less, and the head is what you can say covered with sclerites. ठीक है, these are protective structures, so these are 6 sclerites. So you can see जैसे अपना cranium है, खोपड़ी है, वैसे वो कॉकरोच को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 6 स्क्लेराइट्स तुम्हें हेड रीजन में मिलेंगे.
नाउ दैट हेड रीजन बेसिकली कंसिस्ट, अब ये हेड है अगर, तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस नजर आते हैं। सो ये जो तुम देख रहे हो, दिस इज द आई, ऑब्वियसली दिस इज द कंपाउंड आई ऑफ द कॉकरोच जो तुम्हें यहाँ पे मिलती है, एंड दैट आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोज़ेक इमेज। मोज़ेक इमेज मतलब ऐसा पीसेस में इमेज दिखती है। नाउ यहाँ पे जो हर एक सेगमेंट है, नाउ इट इज ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दैट आर नोन एज ओमैटिडियस, ठीक है, ये तो भी लिखा था मैंने, हाँ। तो द कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ हेक्सागोनल लेंसेस एंड सिंगल आई almost have thousands of those lenses. So ommatidias से एक मतलब ऐसे हजारों ommatidias से ये एक कंपाउंड आई बनी, ऐसे दोनों आईज होंगे। Then it has a socket and in that socket से arises the antennas, ठीक है। Just ahead the मतलब हेड के थोड़ा सा आगे एक सॉकेट है, उस सॉकेट से ये उसके एंटीनास वहां से प्रोजेक्ट आउट होते हैं। देन उसी के आगे थोड़ा सा यू विल सी व्हाइट स्पॉट्स एंटीनास के बेस में, जिन्हें हम फेनेस्टर्स या व्हाइट स्पॉट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो वो भी एक है जो which helps to perceive senses, ठीक है। एंड ये एंटीनास तो उसके सबसे मेन है, क्योंकि एंटीनास जो होते हैं वो दोनों है टैक्टाइल रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टो रिसेप्टर की तरह काम करता है। टैक्टो मींस टच, प्रेशर, सो एंटीनास की मदद से मेन काम कॉकरोच कर लेता है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन रादर इवन देन द आई। आई उतना अच्छे से काम नहीं करता, मोज़ेक इमेज जरूर है। सो कंपाउंड आईज के बाद मतलब एंटीना सबसे मेन। दूसरा ऑल्फैक्टो रिसेप्शंस भी है, मतलब फूड का पता लगाने के लिए वो एंटीना की मदद लेता है। इवन ये जो मैंने फेनेस्टर्स बोला था, व्हाइट स्पॉट्स, इट कैन व्हाट यू कैन से डिटेक्ट चेंज इन प्रेशर। तो अगर तुम कॉकरोच को मारने जाते हो तो ऑब्वियसली व्हेन यू मूव योर हैंड, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द प्रेशर एयर ऑलरेडी कंप्रेस हो जाती है, दैट एयर रीचेस द कॉकरोच फर्स्ट एंड वो उसे पता चल जाता है, इसलिए ही कैन रन अवे। सो काफी सेंसिटिव सेंसेस है इसके। एंटीनास तो सबसे डोमिनेंट है उसमें, टैक्टाइल, टच, प्रेशर एंड olfaction, that is smell for food or any other thing, it can detect with the help of antennas, ठीक है। then eyes के मामले में होने गया, हेड में आगे की तरफ फिर तुम्हें मिलेगा माउथ, ठीक है। then it has this upper lip which is known as labium, then it will have two small triangular with chitinous teeth, so ये serrated margins के साथ होते हैं, so it helps to break down the food, ठीक है। तो कटिंग के लिए ये मैंडिबल काम में आता है। then maxilla is there to hold the food, ठीक है। with the help of this papillae the maxilla, ये जो दो है maxilla फूड को पकड़ता है, एंड ये लोअर लिप है that is known as labium, ठीक है। एंड जुबान, टंग ऑफ द कॉकरोच को हम लोग हाइपोफैरिंक्स के नाम से जानते हैं। तो ये है हेड रीजन ऑफ कॉकरोच which has compound eyes mainly for vision, but ऐसे भी ये nocturnal है, so ज्यादा क्लियर इमेज की उम्मीद नहीं कर सकते। They mostly rely on the antennas for touch, receptor pressure changes and olfaction, that is for smell of food and all other stuff. So ये antennas important है। Then it has mouth which is generally chewing and biting type, ठीक है। So in that way ये उसके माउथ के पार्ट्स है, upper lip, labrum, mandible, maxilla, lower lip, labium, and the tongue को हम हाइपोफैरिंक्स के नाम से जानते हैं। तो हेड रीजन ऑफ कॉकरोच होप सो सबको समझा है। तो हेड रीजन में इतना स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द थोरैक्स रीजन। नाउ थोरैक्स रीजन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हियर यू कैन सी दिस इज प्रोथोरैक्स, दिस इज मेसोथोरैक्स एंड दिस इज मेटाथोरैक्स। तो ये जो तीन सेक्शंस है वो यहाँ पे है। तो here you can see these are the part of thorax from where 3 pairs of legs arise, ठीक है। तो हर सेगमेंट से एक जोड़ी पैर आते हैं। सो thoracic region से legs यहाँ पे आते हैं। सो if this is the thoracic region, so legs,
अब लेग्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि उसके पार्ट्स लर्न करें। तो देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। सबसे पहला पार्ट है जो थोड़ा सा ट्रायंगुलरिश होता है, वो है कॉक्सा। कॉक्सा से निकलता है ट्रोकेंटर, ठीक है। ट्रोकेंटर के बाद निकलता है फीमर, ठीक है। ट्रोकेंटर के बाद निकलता है फीमर, में थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ। फीमर से निकलेगा टिबिया विच इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द कॉकरोच लेग, एंड लास्ट में आएगा टार्सस। सो इस और एंड ऑब्वियसली दे हैव दोस स्पाइन्स, और ये स्पाइन्स ही सबसे सेंसरी है। कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं वो स्पाइन, क्योंकि दीवार पे जब ये चलते हैं तो अपने को दीवार स्मूथ लगती है, बट एक्चुअली दीवार में स्मूथ है नहीं वो, उसमें काफी रफ सर्फेसेस है, होल से या सॉकेट लाइक है। सो इन स्पाइन्स की मदद से वो उधर लॉक करने में मदद होता है, एंड ऑब्वियसली दे कैन इवन वॉक वर्टिकली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस दे आर आल्सो वेरी सेंसिटिव टू प्रेशर। सो अगर जैसे अगर कॉकरोच सामने और मैं चलने की कोशिश करती, if I put my foot very softly, the pressure waves from my foot ये उसे पहुंच जाते हैं and he can run away. So इसलिए ये भी माना गया है कि they are so sensitive they can even detect earthquakes and also इनके ऊपर काफी रिसर्च हुआ है for this. So these are quite sensitive what you can say spines which are found on the legs. So we have 3 pairs of legs and इसलिए तो नाम है arthropoda, because the leg is divided into various joint, that means they look like a joint structure, so joint appendages, hence arthropoda. So 3 pairs of legs are arising from each of the thoracic region. Thoracic region में 2 और important चीज है, it has 2 wings, that is 4 wing, जो कि generally dark, opaque, and it is non-functional, it just serves the purpose of covering. So cockroach की जो बैक दिखती है that is brownish or reddish brownish जो दिखती है, that is because of that chitin and the 4 wings which are actually non-functional, they just help to cover, and while when they are open they help in steering, ठीक है। actual functional wings ये वाले होते हैं which we call it as hind limbs, hind wings, sorry. So these are hind wings which are actually the functional one. So they are very thin, transparent, lightweight. So they help in what you can say flying. Rarely हम cockroach को उड़ते हुए देखते हैं. Only in some crisis situation they might what you can say go to flight mode, or in order to search their mate. ठीक है, female cockroaches ढूंढने के लिए भी they have to means they can use the flying ability for that. So ये विंग्स है जो मेसो और मेटाथोरैक्स से आते हैं, प्रोथोरैक्स से नहीं. 4 विंग्स अराइज फ्रॉम मेसोथोरैक्स एंड मेटा से निकलेंगे हाइंड विंग्स. सो इस तरीके से जो नॉन फंक्शनल विंग्स है ऊपर, फंक्शनल विंग्स है वो नीचे की तरफ तुम्हें मिलेंगे. सो दिस इज द थोरैसिक रीजन. द नेक्स्ट इज द मेन एंड द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ कॉकरोच, दैट इज द एब्डोमेन. तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लेता हूं, इफ आई सी इट वर्टिकली, so suppose this is the section of cockroach. so ये उसका upper part है, ठीक है, and ये उसका lower part है, ठीक है. so this is the dorsal part, this is the ventral part of cockroach. अगर मैंने थोड़ा horizontal view में दिया ऐसा था तो मैं ऐसे देख रहा हूँ साइड से. if this is a cockroach which I am seeing from front side, so I am showing it you in this way, ठीक है. सो उसका एब्डोमेन से अगर क्रॉस सेक्शन में अगर निकालता हूं तो हम देख सकते हैं इसमें फर्क क्या है. तो इट हैज कवरिंग, काइटिनस कवरिंग. तो जो डॉर्सल साइड पे एक कवरिंग है, सो दिस इज नोन एज टर्गाइट, ठीक है, या हम उसको टर्गम बोलते हैं. या जो ऊपरी कवरिंग है, डॉर्सल साइड पे कवरिंग है, इट एक्ट्स लाइक अ स्केलेटन. दिस इज नोन एज टर्गाइट, ठीक है. एंड उसके निचले हिस्से में भी एक कवरिंग है विच इज नोन एज स्टर्नाइट, और यू कैन कॉल इट एज स्टर्नम. तो टर्गम स्टर्नम या टर्गाइट स्टर्नाइट, ये उसके 2 कवरिंग्स है. सो दिस इज स्टर्नाइट, यू कैन कॉल इट, सिंगुलर है तो स्टर्नम, ऊपर का टर्गम, ठीक है. एंड इन दोनों को जोड़ रहा है दैट इज आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन.
आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ये उनको ज्वाइन किए हुए हैं। सो इस तरीके से थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल है, तो जब कॉकरोच ग्रो करता है तो नया एक्सोस्केलेटन वो ग्रो करेगा, ऊपर का एक्सोस्केलेटन वो निकाल देगा। सो अंदर से जब कॉकरोच ग्रो होता है तो उसका जो हाइपोडर्मिस है ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन सीक्रेट करता है, एंड जैसे उसकी साइज बढ़ेगी बाहरी एंडोस्केलेटन वो छोड़ देगा, एंड ऑब्वियसली उसको नया एंडोस्केलेटन बना हुआ रहेगा। सो बिफोर दिस इज, तो ये इस तरीके से टर्गाइट और स्टर्नाइट उसके ऊपर लोकेटेड होते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें, और इफ यू सी स्टर्नाइट, मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस, नाउ यू नो दिस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कॉकरोच दिखाता है। नाम में मीनिंग है डायमॉर्फिज्म मींस मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, ठीक है, वो नहीं आएगा मॉर्फिज्म, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सो इट मींस मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट। तो कैसे पता चलता है? नाउ ओवरऑल ऐसे देखोगे तो डॉर्सल व्यू से 9th पे तुम्हें ये एनल सर्काइस दोनों में मिलते हैं, मेल फीमेल, दैट इज सॉरी इट इज एट द 10th पोजीशन, बट 9th पोजीशन ऑनवर्ड्स वी हैव एनल स्टाइल्स, ठीक है, एनल स्टाइल्स, और ये सिर्फ होते हैं मेल कॉकरोच में। सो 9th पोजीशन से तुम्हें एनल स्टाइल्स मिलेंगे लोअर सरफेस पे। अब यहाँ पे दिखा, मतलब ये डॉर्सल व्यू है बट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है लोअर सरफेस पे यू हैव एनल स्टाइल्स, एंड दैट इज अ फीचर ऑफ मेल कॉकरोच। सो एक्सटर्नली तुम ये देख के कर सकते हो। दूसरा, फीमेल में, फीमेल कॉकरोच में जो स्टर्नाइट में 7, 8, 9 है, स्टर्नाइट लोअर वाला, लोअर कवरिंग जो है इन द फीमेल कॉकरोच, लोअर कवरिंग, सो वो एक ही है, मतलब दे आर फ्यूज्ड 7, 8, 9 एंड इट बेयर्स स्पोर्स दैट इज नोन एज गोनोफोफाइसिस, और जिसे अपन बोल सकते हैं स्पर्माथिकापोर, जहां से मेल अपना पेनिस इंसर्ट करेगा उस स्पर्माथिका में, मतलब थ्रू दैट होल, सो दैट इट कैन डिपॉजिट इट्स स्पर्म इन दी फीमेल बॉडी। सो वो 7, 8, 9 जो है स्टर्नाइट, लोअर एक्सोस्केलेटन ऑफ द फीमेल, इट इज फ्यूज्ड। मेल में 9 और 10 फ्यूज्ड है, जहां से ओपनिंग है फॉर गोनोफोफाइसिस, ऑब्वियसली जो मेल ओपनिंग की तरह बोल सकते हैं। सो इससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल कॉकरोच है। बेस्ट, सबसे मेन इजी है तो एनल स्टाइल्स को ऑब्जर्व करना, है तो मेल है, नहीं है तो फीमेल है, ठीक है, दैट्स द इजीएस्ट वे टू गो अराउंड। एक और चीज, एवरी सेगमेंट, मतलब थोरासिक के हर सेगमेंट के लैटरली 3 एंड यहाँ पे 7, टोटल 10 स्पाइरैकल्स हमें कॉकरोच में मिलते हैं। स्पाइरैकल्स क्या है? तो ये रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स है बॉडी या साइड से, अगर हम देखेंगे तो ये अगर साइड है तो कॉकरोच के साइड में ऐसे ओपनिंग्स मिलते हैं which is known as spiracles, from which it is connected to the trachea, जो कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। Like unlike humans कि जैसे अपना ब्लड खाना that is nutrients and oxygen that is air दोनों कैरी करता है, कॉकरोच में ऐसा नहीं होता। कॉकरोच में एयर सेपरेटली, हर सेगमेंट सेपरेटली ब्रीथ करता है, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ वाला बड़ा होगा क्योंकि इट गिव्स सप्लाई टू द एंटायर लोअर एब्डोमेन। सो 10 स्पाइरैकल्स हमें इन टोटल मिलते हैं। 3 आर थोरैसिक, बाकी सारे एब्डोमिनल हमें मिलेंगे, एंड उनका वो एक फीचर तुम्हें एक्सटर्नली यू कैन सी दोस। ऑब्वियसली इट इज कवर्ड विद स्फिंक्टर, नॉर्मली बंद रहता है। व्हेन इट वांट्स टू ब्रीथ इन, स्फिंक्टर खुलेगा, हवा अंदर आएगी, स्फिंक्टर बंद, हवा मतलब ताकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी ना जाए। और हमने थ्योरी में ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो दिस इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। होप सो गाइस सबको ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, टिल देन बाय बाय।